Hello friends, welcome to our third unit, and in the third unit we have introduction to Linux server administration. Uh, so we are going to start what is the Linux server administration and what are there in the Linux server. So in during this lecture we will cover the what is the introductory part of the Linux server administration and what are its distributions. फ्रेंड्स, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के पहले हम देखने वाले कि व्हाट इज मीन बाय सर्वर. सर्वर अगर हम देखेंगे तो सर्वर एक ऐसी मशीन है विच इज़ लोकेटेड एट वन प्लेस एंड there are some other machines which are connected to that server. They are called as a client. We can say one server machine is a server and others are clients. So what is the purpose of this server is some important data will be kept onto the server so that all other connected client can access that data, or some applications we can install onto that server and all other clients will be access that application from that server. Server is centrally located whether all nodes are connected to that server by using computer network, we can say. So this is a server terminology which is a basic part of server and client administration. So in our syllabus we can see what is meant by Linux server administration and how we can do the Linux server administration. So basically the Linux server administration studies the use of the Linux operating system as an all purpose server. लिनक्स सर्वर मतलब क्या है, तो लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल है. एक सर्वर मशीन है, उस पर लिनक्स की ऑपरेटिंग इंस्टॉल है. जनरली क्या होता है कि अगर सर्वर रहा तो उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी अलग या फिर थोड़ी सी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल होती है. इफ सपोज वी हैव अ विंडोज सर्वर, देर इज़ अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बट which is very much familiar with the Windows Server operating system, we can say. So in Linux or GNU type Linux refers to any Unix-like computer operating system which uses the Linux kernel. इसका मतलब हम जो लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमें लिनक्स का कर्नल मिल रहा है. Why we are using Linux operating system as a server operating system? That is because we have a Linux operating system which is an open source development tool. हमें जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स मिलती है, हमें उसे कहीं परचेस नहीं करना पड़ता है. वी विल गेट freely this operating system software from the internet. We can download that software and we can install onto our server machine so that we can use all the facilities which are provided by the Linux server, Linux operating system. So again it is underlying source code which is available to anyone to use, modify and redistribute freely. लिनक्स क्या करता है, हमें जो उसका वो सोर्स है, मतलब उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली हमें अवेलेबल करके देता है सो दैट वी कैन, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हमें कुछ नया उसमें करना है तो हम उसे कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग लिनक्स सर्वर एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आवर सर्वर. सो जनरली लिनक्स में अगर हम देखेंगे तो लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है. डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब उसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ फ्लेवर्स बनाए हैं सो दैट वी कैन यूज़ दैट फ्लेवर्स इनटू आवर सर्वर मशीन. हमें अगर सर्वर करना है तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं लिनक्स में, बट जो मोस्ट पॉपुलर हमें जो फ्लेवर मिलते हैं उसमें है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स. उसे हम RHEL कहते हैं. मैक्स most of the companies or most of the corporate sectors are using this Red Hat Enterprise Linux. आपको पता होगा कि Red Hat Enterprise Linux जो है बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है फॉर सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशंस. अगर हमें सर्वर बनाना है तो हम इसका Red Hat Enterprise Linux का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगेन वी हैव फेडोरा कोर। फेडोरा कोर नाम की भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल हम सर्वर के लिए कर सकते हैं। अगेन वी विल हैव डेबियन सर्वर। डेबियन सर्वर नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हमें प्रोवाइड करता है। स्लैकवेयर ओएस हमें मिलती है। स्लैकवेयर ओएस का भी हम इस्तेमाल एज अ सर्वर कर सकते हैं। मैंड्रेक नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी फेमस हुई है नाउ, विच इज़ कॉल्ड एज मैंड्रिया, या कुछ लोग उसे मैजिसिया भी बोलते हैं, मैजिया भी बोलते हैं। लिनक्स में जो है तो ये फ्लेवर बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगेन वी हैव उबुंटू सर्वर। आपको पता है कि हम इन आवर कंप्यूटर लैब वी आर यूजिंग उबुंटू एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, and suppose we want to do a structure like server and the client, then we can install onto one machine as a ubuntu server। किसी एक मशीन पे हम ubuntu सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट हम उसका जो है यूज़ करके हम बाकी जो मशीन है ubuntu की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह बैठ के। सो ubuntu सर्वर इज़ देयर। सुस इज़ देयर। सुस नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स हमें प्रोवाइड करता है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज़ द ubuntu मशीन्स विद द हेल्प ऑफ द सुस सर्वर। आर्क लिनक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें लिनक्स में मिलती है, भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। एंड द अदर लाइक नोपिक्स ऑफर्स द लाइव सीडी एक्सपीरियंस। नोपिक्स नाम की जो है तो एक लाइव सीडी हमें मिलती है। कहीं भी हम इंटरनेट पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वी कैन इंस्टॉल दैट, वी कैन राइट दैट ISO इमेज ऑन टू आवर CD कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमें होती है उस पर हम इंस्टॉल करके उसमें राइट करके हम उसका इस्तेमाल एज अ सर्वर कर सकते हैं। हम किसी भी CPU में अगर उसे इंसर्ट करेंगे तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हम एज अ सर्वर हम कर सकते हैं किसी भी किसी भी मशीन पर एज अ सर्वर, लिनक्स सर्वर बोलकर। उसका एक नॉपिक्स का एक वर्जन हमें मिलता है, बहुत सारे उसके वर्जन अभी अवेलेबल है इंटरनेट पे। Again we have some important part is that how the server, जो हमें लिनक्स का जो सर्वर हमें मिलता है, तो वो सर्वर पे हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें क्यों सर्वर इस्तेमाल करना है। तो देर आर सम लॉट्स ऑफ फीचर्स which has been provided by the Linux सर्वर। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि बैकअप्स है, डेटा बैकअप हम रख सकते हैं, फाइल रिकवर्स हम रिस्टोर्स हम कर सकते हैं। एंड अगेन वी हैव डिजास्टर रिकवरी विच इज़ अवेलेबल इन टू लिनक्स सर्वर। अगेन न्यू सिस्टम बिल्ड्स हम कर सकते हैं। अगेन हार्डवेयर मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, यूज़र मेंटेनेंस कर सकते हैं। यूज़र जो हमें नए नए जो यूज़र हमें चाहिए, जो यूज़र हमें जिस यूज़र को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो वो भी हम थ्रू दिस लिनक्स सर्वर हम कर सकते हैं। अगेन वी हैव फाइल सिस्टम हाउसकीपिंग हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन का शेयरिंग हम कर सकते हैं। सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू दैट सर्वर मशीन, they can access that application we have installed onto that server। मतलब किसी भी मशीन पर वो इंस्टॉलेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। With the help of that server, anyone which is connected with that server will access that application and he can configure that application। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो उस डेटा को हम उस सर्वर पर लोकेट कर सकते हैं, सो दैट all other clients will access that data with the help of that server। So friends, this is a very simple concept, very simple administration process is there। लिनक्स सर्वर का हमें इंस्टॉलेशन कैसा करना है या फिर उसमें क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाले हैं, हम अभी थोड़ा उस और इलाबरेट करके हम देखने वाले हैं। सो आई होप ये जो सर्वर कंसेप्ट है, लिनक्स सर्वर कंसेप्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन। So if you have any doubt, query, you can ask me at any time, I will always there for you। So this is all for today, we'll see you in next lecture, so thank you all.